is very worse, sir. Still, we are taking care of ourselves, and moreover, entire our distributors are very safe and they are doing very well, doing tremendous job. So I think Great. everything That's is what going I was smooth. just hoping that everybody is safe and everybody is just taking care of himself or herself, their families, and the Vestige family also. So this is very important right now. Yes, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable kind these things, sir. Concern. Thank you, sir. Anytime, Mali. Yes, Mali. Yes, sir. So today people are very excited, sir, because after 2 years we didn't had any proper trainings and we didn't met. I know. Very. And from the last 1 year is like just because of COVID last year, 2020 Yes, in sir. March, and before then that I came to Bangalore and we did a training. Even I wanted to come over there and do the LEAP program also very soon in Karnataka. But unfortunately, from last almost 1.5 years, we just all got stuck and only the online program is just working. But no problem. Online also, I can just give the training basically. So that's more important than anything else. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you. So people are very excited, sir. Especially they are waiting for your words. They are waiting for your especially new announcements, something. So Sure. I know, because a lot of people are like, Subhaiya is laughing like anything. Okay, like everybody is just waiting for the 2nd of June. Actually, not right now. The announcement I can do it, but the most importantly, the announcement will happen by our beloved MD sir on 2nd of June. So you need not to be worried. What I am just keep saying. That MD sir is just taking care of, is like he's a father of all the Vestigians. So he keep on thinking one of the best thing for all of us. How one of the best thing he can just put it in the system or in training or in how the increase in the financial or one of the best life, how he can just give it through Vestige. That's more important, and he keeps on thinking on these terms basically. And so no need to worry about it. It's like 2nd of June, I can tell you, it's like a big bang. thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. So so can we start, sir? Sure, guys. It's like yes, sir. Sir, already 1,000 people तो भर गया, sir. पूरे लोग excited, sir. आप sir. So obviously, Mali, आज 1,000 लोग हैं और maybe I will try to speak a little bit of a Hindi or English because you can translate the things if you want to. Key things, whatever the key things I will talk about, I want you to translate that in the local language so that everybody should get benefit out of it. Definitely, sir. Sure. Okay. So yeah, Mali. ज्यादातर लोगों को हिंदी परफेक्टली, सर, हमारा कर्नाटक में ऐसा है कि हिंदी लोग ज्यादातर लोग जानते हैं, सर. अरे तो मैं हिंदी में बोलता हूँ यार. मिडिल में कोई दिक्कत हुआ है तो मैं डेफिनेटली ट्रांसलेट करूंगा, सर, उसमें. डन. थैंक यू सो मच, मली. थैंक यू सर. थैंक यू मच. स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी, ये मैं आशा करता हूं, ये मैं प्रार्थना करता हूं. और एवरी डे आई चैंट, आई प्रे टू गॉड के पूरी पृथ्वी, इज नॉट अबाउट वेस्टिजियन, पूरी पृथ्वी एक अच्छा, एक सही रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. और बट ऑब्वियसली जब हम लोगों ने वेस्टिज ज्वाइन किया, और आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कुछ चीजें जो वन ऑफ द बेस्ट हमें सक्सेस दिला सकें, सफलता दिला सकें, वो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिससे हम सक्सेसफुल हो. और हम सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट. और आई नो कि हम सब लोग सफलता पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, बट ये कैसे मिलेगा. तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स. पहला मैं बताऊंगा द साइंस ऑफ सक्सेस, राइट. द साइंस ऑफ सक्सेस, कि हमें साइंस, सफलता की साइंस क्या है, साइंस क्या है. ये जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग सफल हो गए, ये जो मैं बोलूंगा ये उनके द्वारा बनाई गई चीजें, ये मैं केवल बता रहा हूं आपको. बट जो लोग इतने सफल हो गए, बिल गेट्स, जेफ बेजोस या टोनी रॉबिन्स या जिम कॉलिंस या मतलब दीज पीपल, जब उन्होंने सक्सेस चख ली तो उन्होंने एक रूल बनाया जिसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड द साइंस ऑफ सक्सेस. और चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, या किसी में भी हो, लाइफ की एक जिंदगी में आपको सफलता कैसे चाहिए, ये साइंस ऑफ सक्सेस डिफाइन करता है. तो साइंस ऑफ सक्सेस क्या है? साइंस ऑफ सक्सेस में 4 चीजें, 4 थिंग्स.
अगर ये 4 चीजें आप करोगे तो इस पृथ्वी पे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके, राइट? तो पहले मैं आपको द साइंस ऑफ सक्सेस, Recording in progress. तो द मीटिंग इज रिकॉर्डेड बाय समबडी, आई थिंक सो। Yes, sir. Me only, sir. अच्छा, व्हाई यू वांटेड टू रिकॉर्ड? यू कैन सर आपका, सर आप तो नहीं मिलते सर हर दिन, तो आपका आवाज तो सुन सकते सर हम लोग। गुड वन मली, राइट, ओके, राइट। सो द साइंस ऑफ सक्सेस, तो पहले मैं साइंस ऑफ सक्सेस बताऊंगा, और उसके बाद जैसे मैंने बोला साइंस ऑफ सक्सेस इज ऑल अबाउट द लाइफ चेंजिंग, लाइफ कोचिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट लाइफ। दूसरा मैं बताऊंगा हाउ वी कैन गेट सक्सेस इन वेस्टीज, right? What are the key factors we have to focus on basically to get success in Vestige? तो 2 चीजें मैं अलग अलग तरीके से आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो the first thing I would like to talk about the science of success. तो science of success में जो सबसे पहली जो चीज आती है उसमें वो कहते हैं belief. The most important thing is the belief, और belief is not on somebody else. किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करना, believe on yourself. हमें विश्वास होना चाहिए अपने आप पे, himself और herself. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अक्सर लोगों को जनरली एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं जब स्टेज पे होता हूं तो जैसे ही स्टेज पे होता हूं मैं एक लाइन बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि स्टेज पे कोई भी एक सुंदर लड़की स्टेज पे आ जाए, राइट? अगर हम जनरली बोलते हैं कि भाई स्टेज पे मैं किसी से बात करना चाहता हूं, तो कोई भी एक सुंदर लड़की स्टेज पे आ जाए तो हिचकिचाहट से, मतलब डरते हुए एक कोई लड़की स्टेज पे आ जाती है, राइट? डरते हुए, राइट? और मैं दूसरी लाइन में बोलता हूं, मेरा क्वेश्चन था कि कोई भी सुंदर सी लड़की स्टेज पे आ जाए, तो जो आ गई वो तो सुंदर है, और जो बैठी हुई है वो कौन है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं इस लाइन को इस तरीके से डिस्क्राइब करता हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। अगर कोई बोलता है ना कि एक सुंदर सी लड़की स्टेज पे आ जाए, तो जितनी हॉल में लड़कियां बैठी होती हैं उन सबको स्टेज पे चले जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बिलीफ, दिस इज कॉल्ड बिलीफ। अगर कोई बोलता है ना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति स्टेज पे आ जाए, तो जितने लोग बैठे हैं उन सबको स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, आज के बाद ये बिलीफ आपको अपने ऊपर होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साइंस ऑफ सक्सेस में जो पहला मंत्र है वो यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। इस पृथ्वी पे जितनी चीजें हुई वो ह्यूमंस ने की, और हम सब लोग भी ह्यूमन हैं, हम सब लोग भी ह्यूमन हैं, और हम सब लोग में भी वो ताकतें हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। केवल वो विश्वास, वो बिलीफ हमारे अंदर होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो पहली चीज होती है वो है साइंस ऑफ सक्सेस में बिलीव। दूसरी चीज, लोग अक्सर 2 चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है हार्ड वर्क और एक है स्मार्ट वर्क, राइट? लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्या हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है या स्मार्ट वर्क से सक्सेस मिलती है? और ये न्यू डेफिनेशन स्मार्ट वर्क एक्चुअली मैं लोगों से बहुत सुनता हूं, तो मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं कि कितने लोग हैं जो हार्ड वर्क से जो हार्ड वर्क, जिनको लगता है कि हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है, क्या अपने हाथ खड़े कर सकते हैं? जिनको लगता है हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है, राइट? ओके, लॉट ऑफ पीपल, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। हाथ नीचे कर लीजिए, टू गुड, ओके। और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कितने लोग ये सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है? तो अब जो स्मार्ट वर्क से सोचते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें, और बाकी जो हार्ड वर्क से वाले थे वो नीचे कर लें। ओ माय गॉड, स्मार्ट वर्क से इतने लोग, ओ माय गॉड, गायब हो गया मैं, ओ शिट मैन। थैंक यू सो वेरी मच, हाथ नीचे कर लीजिए वापस से सारे के सारे। आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया नीचे कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। सो दोनों के बारे में मुझे अंतर पता चल गया। लोग ज्यादातर ये सोचते हैं स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है, और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। इस पृथ्वी पे स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क।
लोगों को लगता है, शिव खेड़ा की एक लाइन जो लोगों ने गलत रूप से प्रेजेंट की, शिव खेड़ा ने एक लाइन कही थी, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। काम वही करना है, बट काम के तरीके को बदलना है, तब हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज एक नई थ्योरी जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इसे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने भी हाथ ऊपर किए हुए हैं वो हाथ नीचे कर दे अपने, राइट, अपने स्क्रीन पे जितने लोग भी हाथ ऊपर उठाया था वो प्लीज हाथ नीचे कर सकते हैं, राइट। और जो आज मैं थ्योरी सुना रहा हूं या समझा रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और अब ये लाइफ टाइम थ्योरी यही चलेगी, अब ये चेंज नहीं कर सकता। और मैंने जैसे बताया, ये मैंने नहीं बनाई है सारी थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लोगों ने बनाई, तो उनसे ही हमें सीखने का मौका मिल रहा है, और मैं भी उनसे ही सीख के आया हूं बेसिकली। तो उन्होंने कहा, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती, स्मार्ट वर्क से ज्यादा मिलती है। क्या मुझे एक बात बताइए, खाने की प्लेट आपके सामने पड़ी हो, ये चाय का कप मेरे सामने पड़ा है, भरी हुई है चाय, अगर मैं इसे उठाऊंगा नहीं तो क्या मेरे पास आ जाएगी? क्या मेरे मुंह में चली जाएगी? नहीं। तो एक चीज समझ लीजिए, हार्ड वर्क इज द की। पृथ्वी पे कुछ भी करना है उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता, नथिंग। बट आज कोविड है, हम पर्सनली नहीं मिल सकते, ऑफलाइन नहीं मिल सकते, तो हम कैसे मिल रहे हैं? जूम के द्वारा मिल रहे हैं, जूम के द्वारा मिल रहे हैं। ये क्या हो गया? स्मार्ट वर्क। पर ये स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, इसको डिफाइन किया, हार्ड वर्क स्मार्टली डन, हार्ड वर्क स्मार्टली डन। काम का तरीका बदला, कि हम ऑफलाइन मिलते थे, आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, बस हमने यही तो बदला। मिल तो तब भी रहे हैं, बात तो तब भी कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, मैं चाहे स्टेज पे बोलूं, आप चाहे कुर्सी पे बैठे हो, अभी भी कुर्सी पे बैठे हो, स्टेडियम में बैठे हो या अपने घर में बैठे हो, फर्क कुछ नहीं है, बट आज भी आप सुन रहे हो, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं बोल रहा हूं, चाहे स्टेज पे बोल रहा हूं, चाहे यहाँ ऑफिस के कमरे से बोल रहा हूं, अपने कैबिन से बोल रहा हूं, तो हमेशा याद रखना, द न्यू डेफिनेशन विच विल लास्ट फॉर एवर, जो नई चीज है वो है हार्ड वर्क स्मार्टली डन, स्मार्टली डन। काम के तरीके को हम थोड़ा बदलेंगे, करने का तरीका बदलेंगे। हम कई बार ज्वाइनिंग ऑफर चलाते हैं, हम रीपर्चेज ऑफर चलाते हैं, हम फास्ट 8%, ये क्या है? ये स्मार्टली डन है। काम तो करना ही पड़ता है ना, हम ये तो नहीं कहते कि 282 पीवी पे ही हम कहते हैं आपको फास्ट रेट मिलेगा, हम ये तो नहीं कहते ना कुछ भी मत करो फास्ट रेट ले जाओ, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना। या हम कहते हैं ना 2000 रुपए का सामान खरीदो तो आपको 200 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है, हमने ये तो नहीं कहा कि 200 रुपए का सामान हमसे फ्री ले जाओ, नेवर, never. So the science of success says the second point is hard work smartly done. मेहनत तो करनी पड़ेगी, तरीके बदलने पड़ेंगे, इनोवेशन करना पड़ेगा। तीसरा, जो the third point is what? Increase या know your capability या ability. Know your ability या increase your ability. First knowing your ability, मेरे में क्षमताएं क्या है, मेरे में एक्स फैक्टर क्या है। सचिन तेंदुलकर ने 9 साल का था जब उसने बैट पकड़ लिया था, वो क्रिकेट में अच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूं, लोगों को गलतफहमी है, क्रिकेट में अच्छा नहीं है, वो बैटिंग में अच्छा है। वो क्रिकेट शायद फील्डिंग बहुत मिसफील्ड की होंगी, उसने कैचे भी छोड़ी होंगी, राइट, बट हाँ वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, यानी कि बैटिंग उसका एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर मैं कह रहा हूं। नो योर एक्स फैक्टर। लता मंगेशकर एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है, बट उनका गले में उनकी वॉइस एक सरस्वती बैठती है, यानी कि सिंगिंग टैलेंट, ये एक्स फैक्टर है उनका। और दोस्तों ऐसे ही आप सब लोगों की जिंदगी में भी एक एक्स फैक्टर है, मेरी जिंदगी में भी बोलना ये एक्स फैक्टर है, राइट। कम्युनिकेशन, मेरे पास एक जो एक्स फैक्टर है कि मैं लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, ये मेरा एक्स फैक्टर है, और ये मैंने 15 साल पहले सीखा। जब भी मैं लोगों से बात करता था, मैं नोइंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ये नहीं बोल रहा बाहर वाले लोगों को जानो, मैं बोल रहा हूं नोइंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग अपने आप को ही नहीं जानते और ढूंढते हैं दूसरी जगह, दूसरे से बातें करते हैं, मेरी क्षमताएं क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वीकनेसेस पे मैं कैसे काम कर रहा हूं। मैं बैड लिसनर था, मुझे आज भी याद है, आज से 15 साल पहले मैं बहुत बकबक बकबक करता था, किसी दूसरे को बोलने नहीं देता था, वैसे तो आज भी यही करता हूं, राइट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस के साथ पढ़ता हूं। मैंने 2012 में लिस्ट बनाई कि मेरे को वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है। क्रेस्कॉम एक कॉलेज में गया 2014 में न्यूयॉर्क में, उसके बाद
डेल कार्नेगी 104 साल पुरानी कंपनी, वहां चला गया उनसे पढ़ने के लिए। फिर टॉनी रॉबिन्स से पढ़ने चला गया, जिम कॉलिंस से पढ़ने चला गया। इंडिया में सदगुरु कोयम्बतूर गया मैं अभी दिल्ली में भी सदगुरु का इवेंट अटेंड किया। इंडियन इंजीनियरिंग योगा पूरा आता है मुझे, राइट। उसके बाद यहाँ पे शिवखेड़ा के जो प्रोग्राम से मैंने वो अटेंड किए। तो मैंने 10 लोगों की ऐसे लिस्ट बनाई थी। मैंने कहा मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को नॉलेज चाहिए, मेरे को और ज्यादा। अब मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, अलग अलग डिफरेंट चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ कि मेरे पास नॉलेज हो, जिससे मैं और ज्यादा आप लोगों को नॉलेज दे सकूं। और यही मैं चाहता हूं। हमारी जितनी क्षमताएं हैं हमें पता है, मैं अच्छा बैटिंग कर सकता हूं, मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग वीकनेस है, तो क्या मैं बॉलिंग पे थोड़ा सा काम करूं? तो अगर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप में वीकनेस क्या है जिसके ऊपर आप अपनी लाइफ में काम कर सकते। तो नोइंग योर एबिलिटी और इंक्रीजिंग योर एबिलिटी, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे को बोलना नहीं आता दीपक जी, तो मैं क्या ट्रेनिंग देना बंद कर दूं? नो, मुझे सीखना पड़ेगा बोलना कैसे। अगर मेरे को लीडरशिप बननी है, अगर मेरे को लीडर बनना है, तो मुझे बोलना आना चाहिए। कैसे बोलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। या क्या बोलना है ये कैसे पता चलेगा? मेरे को बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मुझे वीडियोस देखने पड़ेंगे, मुझे लोगों के पास पढ़ाई करने जाना पड़ेगा, तभी तो मैं बोलूंगा। और आज मैं आपको बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप सफल लीडर सुनते हैं, टॉनी रॉबिन्स को आप सुन रहे हैं, जिम कॉलिंस को आप सुन रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी को सुन रहे हैं, या मुकेश अंबानी को सुन रहे हैं, या एक्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी सुन रहे हैं। आप सोचिए उनके दिमाग में कितनी चीजें होंगी, कितनी नॉलेज होगी उनके पास जब वो बोल रहे हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो देख के बोलते हैं, उनके दिमाग में होता है सब कुछ, उनके एक्सपीरियंस से और नॉलेज से वो अपने आप को एनरिच कर लेते हैं। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट जो सफलता दिलाती है, वो ये दिलाती है, नोइंग योर एबिलिटी और potential, या keep on increasing your potential. Learning is a process, never end. और इसीलिए पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, कुछ भी करते रहो। ये साइंस ऑफ सक्सेस का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही सब चीजें हमें सीखनी है कि आज बड़े से बड़े लोग कितना पढ़ाई करते हैं। आज अगर आप देखो फेसबुक, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मार्क जकरबर्ग, जब 2009 या 2000 उससे पहले जब उन्होंने शुरू की और आज तक, वो ये नहीं कि एक बार शुरू करके बंद कर चुके, मतलब छोड़ चुके। एवरी डे फेसबुक पे नया फीचर, एवरी डे मोबाइल पे नया फीचर, एवरी डे आईफोन का नया फीचर, एवरी डे कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आता है, नहीं आता? नोटिफिकेशन आती है ना, सबके पास आती है। आपकी लाइफ की नोटिफिकेशन कहाँ है? आपकी लाइफ की नोटिफिकेशन कहाँ है? आईफोन तो आपको 11 चाहिए, आईफोन तो 8 पुराना हो गया। अरे आप भी तो पुराने हो गए, नॉलेज पुरानी हो गई, लोग कहेंगे आपसे, यार ये तो यही बोलता रहता है, नया कुछ है ही नहीं इसके पास, कुछ पढ़ता ही नहीं है, कैसे पैकअप करेगा हमारी टीम को? वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंस ऑफ सक्सेस में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अपग्रेडेशन, एनरिचमेंट, एनहांसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर काम करना। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब आप बाहर नहीं जा सकते, आज लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने अंदर जाओ, गो इनसाइड डीप डाउन, नो योरसेल्फ। जब बाहर नहीं जा सकते, अपने अंदर तो जा सकते हैं। महाभारत में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, हम सब लोगों को पता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बता रहा हूं। तो जो पांडव थे, उनको अज्ञातवास था, 1 साल उन्हें छुप के रहना था, राइट। अब वो जब छुपने गए तो वो जंगलों में रहते थे, वहां कुटिया वुटिया बनाई और ऐश करते थे। अब जो भीम था वो सोता रहता था, राइट। युधिष्ठिर था वो इधर उधर घूमता रहता था, राइट। अर्जुन था वो भी। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिंदगी का, इनको समझना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो भगवान जी आ गए उनके पास और उनसे बोला, अर्जुन क्या कर रहा है भाई? उसने कहा, ऐश। सर अज्ञातवास है, वनवास है, लॉकडाउन है, ऐश। कई लोग अभी आज हम सब लोगों के घर में लॉकडाउन है, और जो मैं बोलने वाला हूं, मैं सॉरी पहले ही बोल दूं, फीमेल्स जितनी भी आए, मैं माफी मांग रहा हूं। अब पता है लॉकडाउन जैसे खुलेगा, हम सब लोगों का वेट ना 4-5 किलो बढ़ चुका होगा, तोंदे निकल चुके होंगे हम सब लोगों की, और ये सब श्रेय जाता है ये फीमेल्स को। घर पे ठूस ठूस के खिलाएंगी अभी, राइट, सबको खिलाएंगी, नए नए पकवान बनाएंगी, सब कुछ करेंगी। और हमारे, अरे हमें हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए या वेट बढ़ाना चाहिए? तो लॉकडाउन किस लिए, ये आपको समझना चाहिए। तो एक लाइन बोली गई थी लॉकडाउन या वनवास के लिए, इस टाइम पे आप अपने आप को नया निकाल के लाओ, आप नए बन जाओ,
तो दीपक सूद, पुराना दीपक सूद और लॉकडाउन के बाद नया दीपक सूद। नया दीपक सूद मतलब मोर नॉलेज, मोर कन्विंसिंग एबिलिटी, मोर कॉन्फिडेंस, मोर एनरिचमेंट। तो श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को बोला था जो वनवास है ना वो वनवास नहीं है, जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन नहीं है, ये तैयारी है जीत की, फ्यूचर की। दिस इज द टाइम वी शुड लर्न लॉट ऑफ थिंग सो दैट जब हमारा लॉकडाउन बाहर होगा, खत्म होगा, कोरोना कोविड खत्म होगा, हम बाहर मार्केट में जाएंगे और हम एक नए दीपक सूद, नए सुबैया शेट्टी, नए मल्लीनाथ, नए शीतल और एक ईश्वरी या स्वामी जी, किसी के से नए बन के आए। एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और दिस इज द साइंस ऑफ सक्सेस का तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी साइंस ऑफ सक्सेस में कहा जाता है सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सफलता केवल एक चीज मांगती है, वो कहती है मैं आपके पास आने को तैयार हूं, बट आप क्या छोड़ने को तैयार हो मुझे पकड़ने के लिए? आपको भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा मुझे पकड़ने के लिए। भले ही हमारे दोनों हाथों में कुछ ना कुछ है, मेरे एक हाथ में मोबाइल फोन है और मेरे एक हाथ में पेन है, अगर तीसरी चीज मुझे पकड़नी है तो कैसे पकड़ूंगा? मैं एक को छोड़ूंगा, बट छोड़ना क्या है? छोड़ना क्या है? तो मोबाइल फोन छोड़ूं या पेन छोड़ूं? अगेन एक डिसीजन। अरे पेन क्या करता है, मोबाइल फोन क्या करता है? सोचना है। और वो चीज छोड़ देनी है अपनी जिंदगी से जो चीज आपको नेगेटिव करती है, जो चीज आपको प्रेशर देती है, स्ट्रेस देती है, जो दूसरों के बारे में होती है, वो सब चीजें छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो। और मैं कहता हूं कंफर्टेबिलिटी छोड़ दो। बस जिस चीज पे आपको बहुत मजा आता हो ना वो चीज छोड़ दो। सिंपल। आपको एसी में बहुत मजा आता है, छोड़ दो। आपको बहुत अच्छी अच्छी आलीशान कुर्सी पे बहुत मजा आता है, छोड़ दो। मार्केट में जिस दिन लोगों ने कंफर्टेबिलिटी छोड़ दी, सक्सेस उनके पास आने लग गई, सफलता उनके पास आने लग गई। कंफर्टेबिलिटी छोड़नी है। कंफर्टेबिलिटी इंसान को काम नहीं करने देती, आगे नहीं बढ़ने देती, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, कंटेंटेड हो जाते हैं हम लोग। 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, किसी का बहुत है, मैं 2 लाख कमाऊंगा, मतलब ही नहीं, क्योंकि कंटेंटेड हो गया। 1 लाख ही बहुत सारा है मेरे लिए, तो 2 लाख कहां कमाऊंगा? और कोई कहता है 50 लाख कमा रहा है, वो कहता है तब भी 1 करोड़ कमाना है, वो उससे भी खुश नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को देखो, मुकेश अंबानी को देखो, अडानी को देखो, रतन टाटा को देखो, आप कितने बड़े बड़े बिजनेस, वो रुक गए क्या? लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, आज भी वो काम कर रहे हैं। उनके पास इतनी वेल्थ है कि उनकी 10-10, 15-15 पीढ़ियां चल सकती हैं, बट आज लॉकडाउन में भी रतन टाटा काम कर रहे हैं यार, मुकेश अंबानी काम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, कंटेंटेड ही नहीं है जिंदगी में, कंफर्टेबिलिटी छोड़ रखी है, बट उस लेवल पे है जहां कंफर्टेबिलिटी मिलती है उन्हें, बट स्टिल जब हम वहां उस पहुंच जाएंगे तो हम भी कंफर्टेबिलिटी ले लेंगे। बट आज अगर सक्सेस चाहिए तो वी नीड अनकंफर्टेबिलिटी, नॉट कंफर्टेबिलिटी। तो द साइंस ऑफ सक्सेस के 4 चीजें जो आज हमने सीखी। पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीफ इन योरसेल्फ। दूसरा, हार्ड वर्क स्मार्टली डन। तीसरा, नोइंग योर पोटेंशियल और कीप इंक्रीजिंग योर पोटेंशियल। चौथा, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। और यही इंपॉर्टेंट है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, Mali, I hope everybody can understand. If you wanted to repeat in your local language, you can. No problem, sir. Everybody is understanding because you are tremendous, sir. No, nothing, sir. No need to translate. Perfect. Thank you. So the second thing, अब मैं बताने जा रहा हूं, वेस्टीज में हमें सफलता कैसे मिलेगी। हमें वेस्टीज में किन चीजों के ऊपर फोकस करना है जिससे हमें सफलता मिल जाएगी। अब हम कमाना तो लाखों रुपए चाहते हैं, बट कैसे कमाएं इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजें हमें फोकस करनी, 3 थिंग्स। और उसमें सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी, कंजम्पशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आपको करोड़ों रुपए आ जाएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। खाओगे नहीं तो बताओगे कैसे, अंदर जाएगा नहीं तो निकलेगा कैसे? अरे पेट में जाएगी कोई चीज तभी तो मुंह से निकलेगी। इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा है, बुरा है, तभी तो आप फीडबैक दोगे। अरे मेरे को स्पिरुलिना अच्छा लगता है, मुझे नोनी बेकार लगता है, मुझे फ्लैक्स से ये हुआ। जब तक आप बोलोगे नहीं, खाओगे नहीं, तब तक बताओगे कैसे, कन्विंस कैसे कर पाओगे? इसीलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, कंसिस्टेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तारीख कोई अपलाइन फोन नहीं करेगा, कोई डाउनलाइन को फोन नहीं करना, कुछ नहीं।
दिस इज माई, आप कुछ भी कह लीजिए, फर्ज है मेरा, कर्तव्य है मेरा, एक्स है मेरा, वाई है मेरा, मेरे को 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी करनी है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कोई किसी से बात नहीं करेगा एवरी सेकेंड, अरे जो प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगते हैं बाहर मार्केट से भी तो लेने जा रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं 2 तारीख को वेस्टीज से ले लेता हूं, और क्यों नहीं प्लानिंग कर लेता। कई लोग मेरे पास आते हैं, दीपक जी हम 5 को कर लेंगे, मैं कहता हूं भाई 1 महीने 5 को कर ले, पर दूसरे महीने तो ऐसी प्लानिंग कर ले कि 2 को ही कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लानिंग भी तो है। और 2 तारीख को क्यों इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि 2 तारीख को क्यों करें, तो मैं उनको हमेशा सिखाता हूं एक चीज, मैं कहता हूं जो पिछले महीने आपने लेवल किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले महीने डायमंड लेवल किया, राइट, तो इस महीने की 2 तारीख को, फॉर एग्जाम्पल मई का महीना चल रहा है और मैंने डायमंड लेवल किया मई में, अब 2 जून को मेरी डाउनलाइन मुझे डायमंड एक ही दिन में बना दे, इतनी कंसिस्टेंसी डाल दे कि मैं 2 तारीख को ही डायमंड बन जाऊं। जो पिछले मई में मैंने पूरे महीने में डायमंड बना, मेरी डाउनलाइन के पास वो ताकत है, यानी कि आप सब लोग जो डाउनलाइन है, आप सब लोगों के पास ये ताकत है कि आप अपने आप को, और हर बंदा ये सोचे अपने अपलाइन को जो भी लेवल देना है, तो आपकी डाउनलाइन आपके बारे में सोच रही है, आप एक ही दिन में उन्हें वो बना सकते हो, आपको पूरे महीने की जरूरत नहीं है, पूरे महीने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज कि प्लानिंग करनी है, 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी डालनी है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। 2 तारीख को आप कंसिस्टेंसी डालो, आप धमाका देख लो। और अभी देखते भी हो आप लोग, मली हम लोगों ने, और इवन सुबैया अगर अनम्यूट करके बता सके, सुबैया भी ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सेलिंग में बहुत टाइम से है, और पहला वीक तो लीन वीक माना जाता था, पहले वीक तो सेल ही नहीं आती थी, लोग काम ही नहीं करते थे। और यहाँ वेस्टीज में देखो कि पहले दिन ही सबके लेवल हो जाते हैं, पहले दिन ही कोई डीसीडी बन जाता है। सॉरी सुबैया, पहले 10 दिन कुछ नहीं होता था। ट्रू, और यही बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं यही कहता हूं, एक दिन केवल अपलाइन का और पूरा महीना डाउनलाइन का, केवल ये चीज करते हैं कि एक दिन अपलाइन का, आज मेरा दिन है तो मेरी डाउनलाइन 100 पीवी करके मेरे को मेरा लेवल दे रही है, और पूरे 30 दिन मैं अपनी डाउनलाइन के लिए हूं, अब बस खत्म, बस खत्म, कि मेरे को जो करना है वो 2 तारीख को हो गया, और टेक माय वर्ड वो दिन आएगा, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे हम दोस्तों, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज तक इस पृथ्वी पे ना बना। मैं बता रहा हूं आपको, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, हम कर भी रहे हैं, बट आपको पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। 2 तारीख ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा एक दिन, आप सब लोग उस दिन झूम जाओगे, बट मेरे को आप सब लोगों का साथ चाहिए। क्या हम 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी डालने के लिए तैयार है ना? यस, बस दैट्स ऑल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल, और 60 पीवी 100 पीवी आपकी मर्जी है, आप चुनो, आपको 1000 रुपए का सामान चाहिए, 5000 का चाहिए, 2000 का चाहिए, 3000, कोई हम नहीं बोलते कितने का, बट आप 2 तारीख अपनी कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल। तो 3 चीजों में, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, दूसरा हमें फोकस करना है नेटवर्क, नेटवर्क, क्योंकि याद रखो नेटवर्क ही पैसा देता है। मैकडोनल्ड शुरू कहां से हुआ था? आज वर्ल्ड वाइड है नेटवर्क। धीरू भाई अंबानी कहां शुरू हुए थे? आज कहां है? नेटवर्क। कॉस्टा, रतन टाटा से लेके किसी की भी बात करो तो केवल नेटवर्क ही करोड़ों रुपए की इनकम दे सकता है। तो दूसरा जो फोकस हमें करना है वो नेटवर्क पे करना है। और दोस्तों एक चीज याद रखना, जब आप शुरुआत में काम करते हो तो 300 किलोमीटर के दायरे पे काम करना है, बस, ज्यादा बाहर नहीं। गलती क्या लोग करते हैं, मैं बेंगलोर से हूं, मैं एक लाइन बनाऊंगा बॉम्बे में, दूसरी बनाऊंगा दिल्ली में, तीसरी बनाऊंगा चंडीगढ़ में, चौथी बनाऊंगा कलकत्ता में। अरे सपोर्ट कैसे करूंगा, कैसे सपोर्ट कर पाऊंगा? पॉसिबल है? नो। 6 बच्चे पास में ही अच्छे, बस सिंपल, ज्यादा दूर नहीं चाहिए हमारे बच्चे। 6 बच्चे पास में ही अच्छे भाई साहब, जिनको हम देख तो सके। 200 किलोमीटर के आसपास, 300 किलोमीटर में हम अपने बच्चों को बनाए और उनके पास पहुंच जाए, बस खत्म बात। जैसे ही उनको रोने, मतलब उनको मीटिंग चाहिए, हमने सुबह 1 घंटे की ड्राइव पकड़ी, ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, गाड़ी पकड़ी, पहुंच गए यार, पूरे दिन वहां काम किया, रात को वापस, खत्म बात। 200 किलोमीटर की शुरुआत में, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, जब हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, शुरुआत 200 किलोमीटर। धीरे धीरे जब मेरी इनकम, और 6 लाइनें मैंने बोली है, 6 बच्चे बोले, तो फोकस केवल 6 लाइनों पे करना है। और शुरुआत में अगर 7वां 8वां आ रहा है तो कहां लगाओगे? 6 के नीचे लगाओगे, डेप्थ में लेके जाओगे अपना बिजनेस,
विड्थ में 6 से ज्यादा नहीं खोलना। 6 से ज्यादा खोलोगे, 6 बच्चों से ज्यादा आप पैदा तो कर लिए, बट उनको अब आपको उनको ग्रूमिंग भी तो चाहिए, ग्रूमिंग भी तो करोगे ना उनकी, कि वो भी आगे जिंदगी में बहुत अच्छा करें, बने। इसलिए आपको एज अ पेरेंट काम करना है, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 6 बच्चे यानी कि 6 डाउनलाइन बनाई, 7वीं आई 6 के नीचे, 8वीं आई 6 के नीचे, 9वीं आई 6 के नीचे, सब 6 के नीचे, सब 6 के नीचे, 6 लाइनें। कब तक? जब तक हमारी इनकम लाखों में ना पहुंच जाए, यानी कि 1.25 लाख। 1.25 लाख के पास पहुंच गई, तब मैं क्या करूंगा? 2 और बच्चे पैदा करूंगा, यानी कि 2 और खोलूंगा। 6 + 2 UCD। स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, राइट। 300 किलोमीटर में अभी नेटवर्क बना रहा हूं, अब स्टेट में बनाऊंगा, पूरे कर्नाटका में बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। 2 लाख का चेक चला गया, 4 और नेटवर्क खोलूंगा। 6 + 2 + 4, राइट। DCD पे जाऊंगा 2 लाख के बाद, और पूरे साउथ इंडिया में मेरा नेटवर्क होगा। और धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे इंडिया में मेरा नेटवर्क होगा। DUCD, जब मेरा इनकम 3 लाख से ऊपर है, तो 3 लाख से ऊपर होगी तब मैं DUCD के लिए काम करूं, और तब मेरा इंडिया में नेटवर्क हो। और धीरे धीरे वर्ल्ड में, इंडिया तक सीमित नहीं रहना दोस्तों, वर्ल्ड में वेस्टिजियन का नेटवर्क होगा, गारंटी है। उसकी तैयारी करनी है आज से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेलिंग मत करना। लोग अक्सर गलती करते हैं, सेलिंग में फंस जाते हैं। सेल्समैन नहीं बनना। 1 रुपए की प्रोडक्ट मत बेचो। जो बेचने वाला होता है उसे सेल्समैन कहते हैं, और वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता। हर सेल्समैन बिजनेसमैन को करोड़पति बनाता है। मोटी बात सुन लो, अब आप देख लो आपको क्या बनना है। बहुत सिंपल सी चीज है। और तीसरा, पहला कंसिस्टेंसी यानी कि कंजम्पशन, दूसरा नेटवर्क, और तीसरा किस पे फोकस करना है? जिसको मैं कहता हूं पे आउट, इनकम। इस पे फोकस करना है, इनकम पे फोकस करना है। नेटवर्क एनालिसिस, जिसको मैं कहता हूं नेटवर्क एनालिसिस करना। मैं किसके साथ काम करूं, किस शहर में जाके काम करूं जिससे मेरी इनकम बढ़ जाए। मेरे नेटवर्क में 5000 लोग हैं, कैसे चुनूं कि मेरे को किसके साथ 15 दिन काम करना है, 10 दिन काम करना है, 4 दिन काम करना है, 20 दिन काम करना है। नेटवर्क एनालिसिस समझना है, वेरी वेरी क्रिटिकल। एनालिसिस, मैं एनालिसिस वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं केवल देखने का वर्ड यूज नहीं कर रहा। नेटवर्क देखना नहीं है, एनालिसिस करना है कि मेरी 6 लाइनें हैं, 5वीं लाइन कितने पीवी कर रही है, वो किस शहर में है। मान लो वो मैंगलोर में है, तो मैं मैंगलोर में अगर वो 4000 पीवी कर रही है, तो इस महीने में 10, 5, 7 दिन वहां लगाऊं, सो दैट उसे 6000 पीवी LOB तक लेके जाऊं। इस तरीके से कुछ आइडियाज निकाल लें कि जो 4000 पीवी तक मेरी लाइन है, उसको मैं 1 हफ्ता दूं, सो दैट वो LOB वाली लाइन बन जाए, राइट। कोई 1000 पीवी पे करने वाली है, उसको मैं 1 हफ्ता दूं, जो 2000 क्वालिफाइड करने वाली हो जाए। तो ये कुछ चीजें एनालिसिस में हमें समझनी है, और ये करना है। 2 चीजों में वेस्टीज पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। 2 चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। कौन सी 2 चीजें हैं? पहला, सेलिंग, सेल्स बिल्कुल नहीं करनी, एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचना वेस्टीज का। और दूसरा, लेवल पे फोकस नहीं करना। लोग अक्सर गलती करते हैं, लेवल पे फोकस करते हैं। लेवल पे फोकस नहीं करना, नेटवर्क पे फोकस करना है, पे आउट पे फोकस करना है, लेवल पे फोकस नहीं करना। आप कभी किसी शादी में गए, मान लो नंदा किशोर जी मेरे सामने बैठे, नंदा किशोर जी, राइट, हाँ, स्माइल, वेरी गुड। तो नंदा किशोर जी चले गए एक शादी में। अब नंदा किशोर जी मेरी एक बात बताओ, जब आप शादी में चले गए तो वहां पे आपको कोई दोस्त मिल गया, उसने कभी आपसे पूछा, रहे वेस्टीज में कौन सा क्राउन डायरेक्टर बन गया, कौन सा गोल्ड बन गया, डायमंड बन गया, तो कभी पूछा आपने? कभी उसने पूछा आपसे ऐसा? वो कभी आपसे ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, उसने ये जरूर पूछा होगा 2 क्वेश्चन, कर क्या रहा है और कमा कितना रहा है। ये 2 जरूर चीजें पूछी होंगी उसने, कि कर क्या रहा है भाई, तो आप बोलो मैं हेल्थ का बिजनेस कर रहा हूं, और दूसरा जरूर पूछेगा, अरे कमा क्या रहा है। तो पे आउट इंपॉर्टेंट है, लेवल इंपॉर्टेंट नहीं, राइट। लोग अक्सर गलती करते हैं, लेवल पे फोकस करने चले जाते हैं। नो, पे आउट, इनकम। घर पे वाइफ तभी खाना देगी जब पैसा होगा, मोटी बात। नहीं तो पैसा नहीं है, आप जाओ क्राउन डायरेक्टर 10,000 का चेक, क्या फायदा है क्राउन डायरेक्टर का। और एक क्राउन डायरेक्टर जिसका 1.5 लाख का चेक, किसको शाबाशी मिलेगी? नेचुरल है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि फोकस करना है इन 3 चीजों, राइट। तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम से कल भी हमारी एक एम्बेसडर मीट थी, तो पहले तो मैंने साइंस ऑफ सेक्स सिखाया, फिर 3 चीजें सिखाई जिसपे हमें फोकस करना है, जिससे हमें सफलता मिलेगी। और एक चीज बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो, वो है कोचिंग।
किसी के नेटवर्क के किसी व्यक्ति को अगर आप लेके आते हो और ज्वाइन कराते हो, मैं पहला व्यक्ति हूँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन। मैं क्या करूं जो किसी की मेहनत को जीरो करता है, मैं उसके अगेंस्ट हूं, बहुत क्लियर हूं। कोचिंग नहीं करनी, आप में दम है, अपना दम दिखाओ, दूसरे की मेहनत आप छीन नहीं सकते। वेस्टीज में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ये नेटवर्क, लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं दीपक जी हमारी फ्यूचर क्या है, तो मैं लोगों को बोलता हूं जनरेशन एंड जनरेशन बिजनेस है। अगर हम कोचिंग करते रहेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे होगी, तो लोगों का जनरेशन जनरेशन बिजनेस कैसे खत्म हो जाएगा। आज मिस्टर सुदर्शन मोहंती उड़ीसा से जिनकी डेथ हो गई, और मुझे बहुत प्राउड होता है ये बात बताते हुए, उनकी डेथ हुई, उनकी वाइफ ने आज बिजनेस संभाला। अगर कोचिंग करते तो सारी लाइनें खत्म हो जाती उनकी यार। तो वो मिस्टर सुदर्शन मोहंती ने अपनी लाइफ दे दी और वेस्टीज में, और कोई और दूसरा ले जाता और वेस्टीज की मैनेजमेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं करती तो अच्छा लगता। या कल आप लोगों के साथ भी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। आज सुबैया ने अपना नेटवर्क बनाया, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, किस लिए बनाया? केवल इसलिए कि जनरेशन देन जनरेशन देन जनरेशन। और हमें सबको मिलके एक चीज, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोचिंग नहीं, अगर कोई करता है सीधा मेरे पास लाओ, मैं पूरा नेटवर्क शिफ्ट कर दूंगा। मैं बहुत क्लियर हूं, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी हम लेंगे। कल भी हमारी यस नो चीटिंग, और कल भी हमारी वेस्टीज एम्बेसडर से भी डिस्कशन हुई। हम बहुत फर्म हो रहे हैं और हम ये गंदगी अपने परिवार में फैलने नहीं देंगे। वी आर वेरी वेरी क्लियर। कोई भी करता हो, दीपक सूद भी क्यों ना करे, उसको भी इस परिवार में रहने का हक नहीं है। फिर खत्म, दैट्स ऑल। क्योंकि सिस्टम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, गलती नहीं। लोग पता नहीं कैसे, मैं देखता हूं कई किसान वेस्टीज में हैं, कई लोग बहुत गरीब, कोई मतलब बहुत रिक्शा चलाने वाले, वो किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये परिवार है, ये सिस्टम है, बॉन्ड है, और सब मिलके आगे बढ़े। अगर हम एक दूसरे की लोगों को काट के अपने नीचे लगाने लग जाए तो उससे फायदा क्या होगा दोस्तों? तो वेस्टीज मैनेजमेंट इज वेरी वेरी टफ on these things and we don't promote this। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोचिंग और ये चीजें जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, और इनसे सबसे हमें बहुत दूर रहना है। मैं यही रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करूंगा, और आई होप आप भी ये चीज समझ रहे होगे और आप भी ये मेरे साथ होगे इन सब चीजों के लिए। यस, थैंक यू सो वेरी मच। नीचे लिखा है आई लाइक दिस ओनली, सो सुपर्ब सर, थैंक यू सो वेरी मच। और मिलके करना है हमें यार, हमें सबको ये मिलके करना है। कोई भी गलत आपके लिए भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप सीधा वेस्टीज की मैनेजमेंट को एक ईमेल लिख सकते हो, फेसबुक इंस्टा पे हम लोग होते हैं, आप उसमें मैसेज डाल सकते हो, मैसेज भी पढ़ते हैं, चिंता मत करो। वो अगर हमारे नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप दे सकते हो, कुछ भी, और अपनी बात हमें पहुंचाओ, ऑटोमेटिकली वी विल टेक अ कॉल। राइट मली, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क स्पेसिफिकली फॉर कर्नाटका पीपल, और जो उनके कोई क्वेश्चंस हो या कुछ भी ऐसा हो जो वो चाह रहे हो? श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सर। हम बहुत बहुत आभारी है सर पूरे कर्नाटका से। सो अभी तो बहुत सारे मतलब लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ क्राउन एंड डाबो के लिए अलो करेंगे अगर सुबह सर माने तो। या सुबैया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांटेड टू आस्क बिकॉज़ एज अ लीडर, एनीथिंग यू वांटेड, ये कोई क्वेश्चन आपकी टीम से आपके पास आ रहा हो जो आपको लगता हो वेस्टीज की मैनेजमेंट को जवाब देना चाहिए? See, at the moment, sir, वेस्टीज की मैनेजमेंट ऐसा है, क्वेश्चन आने से पहले ही आप आंसर दे देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हमें क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ता है आपसे, तो हम आप कभी कभी आके ये सब कुछ कर देते हो। हमें वेस्टीज में मैनेजमेंट वही खासियत है, प्रोडक्ट पूछे बिना आ जाता है, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो यहाँ पे भी हमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है सर। आपका मार्गदर्शन आप टाइम टू टाइम देते रहे हमें, क्योंकि आज जो पॉइंट्स दिया तो इतना शॉर्टकट में दे दिया आपने कि सक्सेस के लिए, तो हमें खाली फॉलो करना है, डुप्लीकेट करना है, ज्यादा आरएनडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी ट्रू। आप है, आप सब कुछ करेंगे और हमें कंडेंस फॉर्म में दे देंगे। मेरी यही कोशिश रहती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक वो वेस्टीज मैनेजमेंट एक हमेशा कोशिश करती है कि आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस बना के दे दे। एक्सप्रेस वे तो हम बना देंगे, अब आपको भागने की कैपेबिलिटी आपकी है। वो आप भी हमेशा कहते हैं कि, वो हमेशा मैनेजमेंट कहता है कि हम तो जाएंगे, आपके पास ताकत है देख लो, वाली साहब भी कहते रहते हैं। सो देयर इज नो रिक्वेस्ट। अभी
अब क्रॉस लेन का थोड़ा सा ये था, कुछ मैच्योर का ये था। डोंट वरी That, गाइस, मैंने जैसे बोला, मैं सबसे पहले उस व्यक्ति के अगेंस्ट हूं अगर कोई कुछ कर रहा है तो। मेरी पूरी टीम, चाहे वो सैयद जी हो, चाहे मलिनाथ हो, चाहे एक्स, और सबको मिलके करना है, सबको मिलके, हमें नहीं, 100%। या। और लोग बहुत सारे लिख रहे हैं 2 जून, अरे चिंता मत करो, 2 जून जैसे आज दीपक सर आए थे बहुत दिन के बाद, सेकंड भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और ज्यादा दिन नहीं है। और मैं आपको अभी बता दूं, तैयारी कर लो, बैंड बाजा मत बुलाना, राइट, मिठाइयाँ ले लेना और अपनी ड्रीम्स बड़े करना क्योंकि बहुत वेस्टीज की मैनेजमेंट बहुत गौर किया है हम लोगों ने। और मैं बार बार जहां पे भी बोलता था कि सिल्वर, गोल्ड, स्टार, जो लो लेवल है उनकी इनकम को हमने डबल करना है, उनके पास पैसा ज्यादा से ज्यादा जाए, और बहुत जल्दी इस साल, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे लोग करोड़ क्लब में भी आएंगे। आज की डेट में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ से ऊपर लेते हैं, बट और लोग भी इस साल ऐसा हम लोग अब आने वाले टाइम में करेंगे, और यही हमारा फोकस है। और 2 जून के लिए भी हम लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। सर और एक रिक्वेस्ट है, एक बार कोविड सब खत्म होने के बाद जब ट्रैवल सेफ हो जाएगा, अब कर्नाटक आना है और पूरा आपका ट्रेनिंग। मैं 3 दिन आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम। Yes, I will for sure. Don't worry. और जैसे ही थोड़ा सा सेफ होता है, I will be। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, पहले वैक्सीनेशन जरूर लगवानी है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान जरूर रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, वेस्टीज फैमिली का ध्यान रखना है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, डबल मास्क पहनना है, डबल, सिंगल नहीं, डबल। बाहर जाना है डबल मास्क पहन के जाना है, वेस्टीज के केवल, ओके, दूसरे नहीं, डबल मास्क पहनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी आज की डेट में, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो बी सेफ, बी हेल्दी, दैट्स व्हाट आई कैन से राइट नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत आभारी है सर आप लोग। सर फाइनली सैयद सर फाइनली सैयद सर को मैं अनम्यूट करना चाह रहा हूँ सर। श्योर। और आई थिंक मैं मिस्टर शेख का कोई हाथ उठा रहे हैं, तो उनका कोई क्वेश्चन भी है। मुजाहिद सर, मुजाहिद शेख, आई यस, मुजाहिद सर, हाँ, आप सेल्फ अनम्यूट कीजिए मुजाहिद सर। थैंक यू सो मच सर। दीपक जी, आपको देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एनिवर्सरी में देखता था, लेकिन आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज प्लेजर, ऑलवेज प्लेजर। आप बस ये कोविड खत्म होने, आप मेरे को ऐसे भी हाथ मिलाओगे, टेंशन मत लो। ओके, तो मेरा ये बहुत अच्छा था आपका जो 4 स्टेप और 3 स्टेप, जिंदगी के 4 स्टेप और वेस्टीज के 3 स्टेप, बहुत बहुत बढ़िया सा था। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर द शेयरिंग। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वेस्टीज को लेके बहुत लोग सीरियस हो रहे हैं, मैं भी बहुत हो रहा हूँ। क्या आप मुझे मैनेजमेंट की तौर से आप बताएंगे कि वेस्टीज 2025 तक किस दिशा पे जाने वाली है? दिशा ऑलरेडी बताई हुई है हमारे एमडी सर ने। अगर आप देखें तो 2025 में हमारे एमडी सर ने ऑलरेडी बोला हुआ है, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज 50 कंट्रीज में हम लोग होंगे, राइट। और ये हमारा थोड़ा सा ये 2020 और 2021 जो अभी तक निकला है, 1.5 साल, हम सबको पता है कोविड की वजह से, इसलिए हम इंटरनेशनल लॉन्च नहीं कर पाए। मुजाहिद भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, थाईलैंड, फिलीपींस, घाना, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज तैयार हैं, ये तैयार हैं। बस मतलब जिस दिन खुलेगा ना, उस दिन जाएंगे, 1 महीने में ऑफिस खोल के, प्रोडक्ट पहुंच के, चलो शुरू काम। मतलब जैसे बांग्लादेश और नेपाल आज की डेट में है, पूरा साउथ ईस्ट हमारे साथ है, मिडिल ईस्ट में हम लोग बहरीन ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, मस्कट या दुबई ले लीजिए, सब जगह ऐसे ही 50 कंट्रीज में वेस्टीज को पहुंचना है, 50 कंट्रीज में। और वे फॉरवर्ड पूरा तैयार है, सब चीज पूरी तैयार है, और जस्ट वेट एंड वॉच। और मैं बार बार कहता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं ये फ्यूचर क्या है वेस्टीज का, मैं कहता हूं आपकी जनरेशन जनरेशन वेस्टीज का फ्यूचर है, और कुछ फ्यूचर नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक चीज से कंटिन्यू करते हुए मैं, और एक सवाल है, तो अभी तक जो वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, जो मतलब 2021 तक, और ये अगले 4 साल में, जैसा कि आपका वेस्टीज का विजन है जो 50 कंट्री में नंबर 10 के अंदर आए, तो ये जो अब तक जुड़े हैं, ये कहां पे रहेंगे? क्योंकि हमारी टीम चाहती है कि वो अगर अगले 5 साल भाई, कहां पर पहुंचे। मैं ये सुबैया से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सुनना। सुबैया, सिद्धार्थ को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो अपने अपलाइन। हाँ जी, हाँ जी। जब 2008 में उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया,
राइट। उससे पहले उनकी क्या हालत थी, मतलब बहुत अच्छे थे, डायरेक्ट सेलिंग में तो थे, बट जब वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग में थे सर, उनका एवरेज इनकम जो था 40-45,000 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। 10 साल उन्होंने किया, उन्होंने 97 में ज्वाइन किया था। 97 to 2008 उनका एवरेज इनकम था 45-50,000 रुपीज के अंदर ही था। और जब वेस्टीज में आए वो, तो उनकी सोच क्या थी, कितना पैसा सोचते थे वो कमा लेंगे? तो वो 75,000 रुपीज सोच के आए थे सर। 75,000 रुपीज अगर मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ये सोच के आए थे। तो भैया आप अपने बारे में बताओ, जब आप वेस्टीज में आए थे तो क्या सोच के आए थे कि कितना पैसा तो हमने सोचा था कि मेरा सैलरी आ जाए तो वो काफी है, मैं आराम से रहूं। कितना बताओ सर 1.5 लाख का सैलरी था मेरा। हाँ। तो मैंने सोचा कि 1.5 लाख अगर आ जाता है या 1 लाख भी आ जाता है, हाँ। तो टाइम मिलता है, मुझे टाइम का फ्रीडम मिलता है, तो वो काफी है। ये देखो, ये सोच के आया था मुजाहिद भाई, ये थॉट था लोगों का जब आए। और आज सुबह कितना चेक आ रहा है सिद्धार्थ भाई का और आपका? सिद्धार्थ भाई का 1.5 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, मेरा 35 लाख तक आ रहा है। और अब आप मुझे बताओ, आप खुश हो सुबैया भाई? नहीं सर, अभी आपने इतना परोस के रखा है, इतना सारा करना है, अभी क्यों छोड़ेंगे? तो मुजाहिद भाई 2025 में भी आप यही सब सुनोगे। जो आज लोग आए ना, वो सोच के, आज मैं आपका एग्जांपल देता हूं, शायद आप भी यही सोच के आओगे 1 लाख रुपए कमा लिया बहुत है, बट 2025 में मैं मुजाहिद भाई से ये क्वेश्चन पूछूंगा ना, मुजाहिद भाई कितना कमा रहे हो? आप भी कहोगे कुछ करोड़ों में। मैं कहूंगा कैसे लग रहा है? कहोगे आप बेकार लग रहा है, करोड़ों रुपए बेकार है। आपका भी यही आंसर होगा। ऐसा ही होता है। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज से 7 साल पहले कोई आया, 6 साल पहले कोई आया, 10 साल पहले कोई आया, वो भी एक थॉट प्रोसेस के साथ आया, राइट। बट जब वो उस थॉट प्रोसेस के साथ आया जो उसने अपनी जिंदगी में देखा, उसने वेस्टीज को नहीं देखा। जब वो वेस्टीज में आया, वेस्टीज के थॉट प्रोसेस और वेस्टीज को देखा, चीजें चेंज हो जाती है। चेंज 100% सर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट मुजाहिद। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. One more question है, Miss Seema ma'am, please. श्योर। गुड मॉर्निंग मिस टीचर दीपक सर जी, आपको देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सीमा है, मैं कर्नाटक के कोडा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्यों बोले तो अब जैसे एमडी को हम लोग आज ये कोविड सब लोग कहते हैं कि नेगेटिव है हम लोगों के लिए, अभी मैं बताती हूँ ये कि तो पॉजिटिव है। क्यों बोले तो हम लोग आपको देखते थे सिर्फ वेस्टीज अवार्ड फंक्शन और यूथ आइकॉन्स में देखते थे, लेकिन आज हम लोगों को कोविड के बदौलत आप डायरेक्टली हम लोगों के साथ में कम्युनिकेशन के कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत आपको एक बात बता दूं, अभी अब ये देखिए, इसको कहते हैं देखने का नजरिया। आपको आप पता है, आज मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें आया कि इंडिया जहां कई चीजों में कहीं नहीं था, फॉर एग्जांपल इंडिया पीपीई किट बनाता ही नहीं था, आज वर्ल्ड में नंबर 2 है जहां पीपीई किट इंडिया ही बना रहा है। वैक्सीनेशन जहां पे इंडिया था ही नहीं, आज इंडिया 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने में वैक्सीनेट कर चुका है। मतलब पूरा वर्ल्ड पीछे और इंडियन सबसे आगे आज की डेट में। तो ये देखने का नजरिया भी है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और एक ही चीज, आपको जब भी, आप सब लोगों को, आपको केवल एक ही व्यक्ति को, मलिनाथ है, सैयद भाई हैं, केवल और सुबैया जी, फोन करना है और बोलना दीपक सूद को बोलो, हम तो नौकर आदमी है मैम आप लोगों के, हमारे को मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, मेरे हम 3 जो लोग हैं ना, हम 3 आप लोगों के नौकर हैं एक्चुअली में। और हम केवल आप लोगों के चेहरे पे खुशियां देखना चाहते हैं। और आप लोगों के चेहरे पे जो खुशियां आती है ना, आप लोग नहीं समझ पाओगे कि हमें कितनी खुशी होती है उससे। थैंक यू सर। जरूर सर। और एक बात कहना चाहती हूँ सर, मैंने हिंदी फिल्म नायक फिल्म अनिल कपूर की देखी है सर, शायद आपने भी देखी होगी। हाँ, तो अनिल कपूर की वो फिल्म में हम लोगों को, जब भी हम एक 3 आवर्स की फिल्म देखते हैं सर, हम लोगों का कैरेक्टर कैसा हो जाता है, हम भी उसमें वो फिल्म में इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं। जैसे कि मेन हीरो का पार्ट हम लोग ले लेते हैं। उस फिल्म में एक बंदा है, ये जो हैंडीकैप्ड रहता है, छोटा सा लड़का आके कह देता है हम लोगों का देश है मेरे जैसा लंगड़ा बन गया है, इसको आप उठा दीजिए करके। तो अभी मैं इतनी एप्रिसिएशन कर रही हूँ सर,
क्यों बोले तो अभी एज कम्पेयर टू हमारी इंडियन करेंसी है तो वैल्यू उसकी इंटरनेशनल लेवल में बहुत कम है। इसकी वजह क्या है बोले तो गवर्नमेंट से जितना भी हम लोग एक्सेप्टेशन करते हैं, गवर्नमेंट हम लोगों को वो फैसिलिटी दे दी, ये फैसिलिटी दे दे, इससे क्या होता है हमारी करेंसी वैल्यू डाउन हो जाती है। क्यों बोले तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है, सिटीजन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, तो मैं एक आंसर देता हूं मैम, मैं आपको आंसर देता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। वेस्टीज की मैनेजमेंट क्या सोचती है, तो मैं केवल एक लाइन में आंसर दूंगा। वेस्टीज की मैनेजमेंट ये सोचती है कि पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वेस्टीज और वेस्टीजियन क्या करेंगे, आप सब लोग, आपके घर का एड्रेस मैम या किसी के घर का एड्रेस मुझे नहीं मालूम, आपके शहर का एड्रेस मे बी कर्नाटका पता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, बट एक वादा है मेरा, वेस्टीज की मैनेजमेंट का एक वादा है। अब कहां से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वर्ल्ड का पैसा हिंदुस्तान में होगा और हिंदुस्तान फिर दोबारा से सोने की चिड़िया, आप जो बोलोगे वो होगा हिंदुस्तान में, मैं आपको आज बता रहा हूं। Thank you so much, sir. Thank you. So don't worry about anything. Don't worry. Or we are only on the job. Thank you. Yes, good morning, sir. Yes, final call. Anand CS, sir. Master final. Yes, sir. Good morning, sir. Please proceed. Morning, Anand bhai. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Yes, you can. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೀಪಕ್ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪೇಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಸೊ 14 years ನಾನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30,000 ಇನ್ಕಮ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ವಿತಿನ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರೌನ್ ಆಗಿ 3 lakh rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ 80 to 90 lakhs ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಡಿವಿಸಿಡಿ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ DLCPಗಳು ಅವರ ಡೌನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕ್ಲೋಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ DLCPಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ DCDಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. सर दीपक सर, वो मतलब आनंद जी क्या बता रहे हैं कि जो DLCP का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है, जो टाइम ज्यादा लग रहा है. ओके, राइट. टाइम मतलब फ्रेम को थोड़ा हम लोग कम करें तो ज्यादातर डेवलप करने में हम लोग मदद हो जाएगा. आनंद भाई, उसमें 2 चीजें हैं. पहला, आपको GST नंबर लेना पड़ता है और एक FSSAI नंबर लेना पड़ता है DLCP पे. ओके. दोनों का के लिए कम से कम 15 दिन से 1 महीने का प्रोसेस है, वो दोनों का ही लेने का. उसमें 15 दिन से 1 महीना लगता है. और 15 दिन वेस्टीज को लगते हैं सारी चेकिंग करने में, किलोमीटर और ये सब देखने में. तो 1.5 महीने का ऑन एन एवरेज ये प्रोसेस होता है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीना और 15 दिन हमारे से. बट हम कोशिश करेंगे कि इसको और मिनिमाइज करें और जल्दी से जल्दी. ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you. Finally, I would like to invite Syed sir for specially vote of thanks. Syed sir. No, Syed, all yours. Good morning. I hope you are sitting in London or which part of the world? US में है सर. सर मैं घर पे ही हूँ. सन इज नॉट फीलिंग वेल, सो मैं थोड़ा उसके बगल में ही था, तो यहीं से मैंने लगा लिया. नहीं सर, वो आपका कंप्यूटर में बैकग्राउंड ऐसा है. अच्छा, that's it. सर थैंक यू सो मच. इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल मैं थोड़ा कन्नड़ में बात करूंगा सर. बहुत सारे लोग जो है वो समझ पाए. ಇವತ್ತು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೂ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು 1 hour ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಜೂನ್ ಏನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಪರಿವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ sparing your valuable 1 hour time with us. Anytime, dear, anytime. All for you guys. Guiding us, and there are a lot of people who can understand with your simple Hindi.
ಹಿಂದಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ನನ್ನ ಸರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋರ್ ದನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಈವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಗೈ ಇನ್ ಮಲಯಾಳಂ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಜನ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಗಾಡ್ ब्लेस. एंड पदे पदे बन्नी, मतलब कन्नड़ में बोलो कि आप बार बार आए, हमें बार बार रिलेट करें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सुबैया बार बार बुला लिया करो भाई. हाँ जी सर, आपको तो बार बार बुलाएंगे एनी टाइम. और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड मैं कुछ कहानियां भी आप लोगों को सुनाऊंगा. 100% सर, आराम से सुनाऊंगा नेक्स्ट. इंतजार करेंगे सर. श्योर. Definitely. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू सो मच सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Recording stopped.